Okay, so in the last lecture we started with this introduction to the course, and we took a problem of a body falling under gravity, and I had given the analytical solution and the numerical solution. Okay, have you tried comparing these two solutions for different Yes, times? sir. If anybody, okay, what did you notice? Anything noticed? Sir, the main thing noticed is Hmm. in analytical, we are Hmm. getting lesser value for V, a little bit lesser value. For analytical solution, Yeah. okay, that is one thing, and is the difference between these two, was it you know does it converge anywhere in both the solution? Did you see any convergence for different times? Did you notice any convergence that this velocity becomes constant after some time? Uh, Constant means I am not Means it getting. does not depend on the time after certain time. No, sir. This No, sir, is checked only for few I values, calculate. sir. it. हाँ हाँ बोलो. After few values. And I am telling that I have checked only for few values, sir. Okay, only for starting values you checked. Okay. Yes. Sir, Okay. Hmm. I have taken for Hmm. t is equal to 0 to t Hmm. is equal to 8 seconds, and Okay. I am Till 8. getting no convergence. Okay. Till 8 you didn't get any convergence. Okay. Yeah. And we try after Sir, 20 after seconds. 30, After 30 seconds. 14, it, हाँ बोलो. sir, after 13, 14 seconds, it seems like Yes. it will After 30 convert. 40 seconds it converges. Okay. And does anybody has answer that why the numerical value is always less? I just want to know why not high. Did you think of something? Is it always the case, या फिर इसी केस में हुआ, या पहले मतलब ऐसा क्यों है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा कम है? ये किस पे डिपेंड करता है? हाँ Numerical value is greater. हाँ सॉरी, ग्रेटर वही क्यों है, ग्रेटर वही क्वेश्चन है. क्या हमेशा ऐसा होता है, या इसी केस में ऐसा है, या ऐसा क्या चीज थी जिसने उसको ग्रेटर बनाया? वो क्वेश्चन है मेरा. कोई आंसर दे सकता है? नीचे क्यों नहीं रहा, मतलब लोअर वैल्यू में क्यों नहीं रहा वो? क्या कभी लोअर हो सकता है? मैं कुछ ऐसा चेंज करूं जिससे लोअर आ जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? ट्राई कर सकते हो, मैं बस हिंट दे रहा हूँ एक. सर वी आई प्लस वन ले तो शायद ऐसा कुछ हो जाए. वी आई प्लस वन ही लिया था हमने. वी आई प्लस वन इक्वल्स टू, हमने जो फॉर्मूला लिया था डीवी बाई डी टी में, या हाँ सॉरी. वो वी आई प्लस वन माइनस वी आई लिया था, है ना? ओके. ठीक है, यू थिंक ऑफ इट कि क्यों ये ग्रेटर है, क्या ये कभी लोअर हो सकता है, या कोई डिफरेंट फंक्शन ले तो ये लोअर हो सकता है, वो चीज सोचने की है. हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशिएशन वो जब हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर द टाइम बीइंग डोंट वरी अबाउट दैट. The values can be greater, the values can be lower, depending on what formula you're choosing, or depending on what function, what is the form of the function increasing है, decreasing है, किस तरह का है, उस पे वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी. ठीक है. uh, since it's an increasing function, so that's why you're getting a higher value. Okay. Now uh, what I'll do is I'll just solve this quickly in this Excel. Okay, so I'll just share the Excel with you. Okay, and today we'll discuss some fundamentals of MATLAB. So let me just share an Excel sheet so that I'll quickly solve it. So is this visible? The Excel page is visible? Yes, sir. It is visible. Okay. So Yes, just see carefully, because I'll be doing a lot of exercise in Excel, etc. So थोड़ा देखना किस तरह से you have to learn the Excel also, because quickly solve करने के लिए Excel is very very important. So सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let me just store some data here. थोड़ा zoom in करूं, या is it comfortable? Comfortable. it is Comfortable. ठीक. comfortable. So Comfortable. let's So it is comfortable. comfortable. So let me take the mass value as 50 kg. So I'm just writing as mass equals to 50 kg. ठीक है. So then we have one second. G. Okay, then let's take the coefficient of drag equals to 0.25. Let me write the unit also, kg per meter. Gravitational acceleration we had taken as g equals to 9.81 meter per second, and
yeah, I think these were the 3 things we had, है ना? Mass, gravitational acceleration and the coefficient of drag. ओके, सो ये जो कॉलम है, कॉलम ई, इसमें बस मैंने यूनिट लिखा है, इसका कोई सेंस नहीं है ना? एज सच एक्सेल में इसका कोई मतलब नहीं है, दिस जस्ट स्ट्रिंग, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसमें केजी लिखूं, केजीएस लिखूं, ये हमारे नॉलेज के लिए है, ठीक है? तो इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सो दे आर इंपॉर्टेंट, और ये इसका भी कोई ज्यादा सेंस नहीं है, ये हमारे नॉलेज के लिए है कि एम है ये वैल्यू, या सी है वैल्यू, या जी है ये वैल्यू, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, जहां भी किसी भी स्टेप पे डाउट हो, जस्ट आस्क। हाँ, उसके बाद मुझे व्हाट आई नीड इज, आई नीड वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, formula we have in front of you, 1 second, let me just put it on the screen here. Formula visible hai, I guess? Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so formula is visible to you. Okay, so let me just quickly put the values here. So Excel, whenever we do this thing, we first mark the columns, the headings. So पहले मैं serial number ले लेता हूँ, at different serial numbers. Let me put some time values. Let me put time in second. Just note down कर रहा हूँ मैं बस columns की value. Time in seconds, and then we'll be calculating the velocity. ये 3 कॉलम मुझे चाहिए. Okay, let me just some boundaries on that also. Oh, sorry. सेंटर कर लेते हैं. Let me put the serial numbers. Okay, तो जब serial number put करेंगे, तो just अगर let's say मान लो तुमने 1 to 10 जाना है, यहाँ भी जाना है, तो जैसे मैंने 1 to 10 लिया, then you can select these 1 2. I hope you might be knowing. तो 1 और 2 मैंने रो को सेलेक्ट किया, एंड यहाँ से जो कॉर्नर पॉइंट है, ये इस कॉर्नर पॉइंट को पकड़ के मैं ड्रैग कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज फिल कर देगा, है ना? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्विकली कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है? या फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ अगर मेरे बगल में डेटा है, तो अगर यहाँ पे डेटा होगा तो वो फिल हो जाएगा, बट यहाँ नहीं है तो नहीं होगा. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रैग द row for filling the values. Okay, now time values. Okay, let's compute this for different times. So let's take 0 for the initial time. Okay, let's take 2, and then increment of 2 will be there, है ना? मैंने 0 ले लिया, 2 ले लिया, I just select these 2 rows and double click on it to get the values as 16. So we have 0 2 4 6 8 10 12 14 16. अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं 0 1 कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल टेक द इंक्रीमेंट ऑफ 1, ठीक है? 0 and 1 सेलेक्ट किया मैंने, डबल क्लिक किया, तो इट विल टेक द वैल्यूज ऑफ 0 to 8. आई होप दिस इज क्लियर, नो कंफ्यूजन. कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई विल बी यूजिंग these things again and again. Okay, okay, just make it a bit bigger. Okay, so हाँ, मुझे v निकालना है, ठीक है? सो अब देखो, इसमें v में 3 कंपोनेंट है, वी हैव 3 कंपोनेंट्स. ओके, फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ gm by cd, सेकंड वन इज tan हाइपरबोलिक, एंड देन वी हैव द स्क्वायर रूट ऑफ gcd by m मल्टीप्लाई बाय t. ओके, अच्छा, एक चीज और है, मैंने इसमें हमने एक वो निकाला था, आई होप इसी डेटा से हमने एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला निकाला था. इफ यू वांट यू कैन यूज दैट वन, और इफ यू वांट यू कैन यूज दिस वन. तो इसका एक काम करते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि ये रूट gm by cd कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ t1, है ना? ध्यान से देखना, मैं लिख दे रहा हूँ t1. t1 का मतलब क्या है? टर्म 1, ठीक है? सो टर्म 1 क्या है मेरी? ये जो रूट gm by cd वो टर्म 1 है. तो लेट मी जस्ट राइट, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना. एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जिस किसी सेल पे मैं हूँ, वहां पे मैं पहले इक्वल टाइप करूंगा. मैंने टाइप इक्वल, इट ट्राइज टू टेक अ फॉर्मूला और सम वैल्यू, ओके, या एक्सप्रेशन. तो मैंने इक्वल लिखा, पहला फॉर्मूला है स्क्वायर रूट. सो एक्सेल में जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, दैट इज SQRT. अपने आप मैंने SQ लिखा, वो XQ आ जाएगा. हाँ, so the formula is SQRT, returns the square root of a number. Okay, I press the tab key. Remember, I press the tab key, so formula is completed. Okay, so I don't have to type the entire formula. I just type the first few letters, and by pressing the tab key, this happens. And the same thing you can do in the MATLAB also. When you're doing programming in the MATLAB, you just type the initial letters of a formula or the function, press the tab key, it will take up the entire expression. Okay, so square root आ गया. Now I need some number. Okay, that number is gm by cd. So I have the value of g, I have the value of m, I have the value of cd. So what I'll do is, see carefully, I'll take okay, जब मुझे वैल्यू चाहिए तो माउस से, with my mouse I take to the value of g. So g क्या है? d6 में है. Okay, you can see it, column number d,
रो नंबर 6, I select this value here, so you can see D6 लिख के आ गया। जिसको एक्सेल आती है that's fine, but जिसको नहीं आती ध्यान से देखना। Now I have this D6 value, I press the multiplication sign, that is the asterisk multiply by, then again I click on the value of m, that is D4, तो वहां पे ऑटोमेटिक D4 आ गया। मैं क्लिक नहीं भी करके, even if I don't click, I can just write that value D6 D4 if I want। okay, D6 multiplied by D4, that is 9.81, the value of G multiplied by M, that is 50. Then I do is division by CD. CD is 0.25. I select that value and I close the bracket. Is it clear? So यहाँ पे मैंने close करके, then I have to press the enter. So I get the value of 44.2945. The same. सर थोड़ा सा zoom कर दीजिए। हाँ, zoom कर लेता हूँ. Okay. I'm showing the formula again. Is it visible now? Yes, sir. No, Is better. So once again you see it. SQRT was the square root formula. No, sir, not visible. Not visible at all. Okay. Abhi? yes sir, It is lagging a bit. So it's visible, sir. We have It's to- visible now now? it is visible. Okay. Sir. ठीक है. Let me just hide these things. Okay. So now we have is square root of D6. D6 is my, you can see, is G, the value of G multiplied by D4, that is M, divided by CD, that is 0.25. Okay. So I have this formula ready. I'll press the enter. 44.2945. The same thing we got when we were doing in the class with hands. तो वो formula में हमने solve किया था. Okay. 44.2945. Now what is the next term? Let me just bring it here. The next value is 10 hyperbolic, and then we'll apply 10 hyperbolic later on. But the second term I call is the root GCD by M. Okay. So let me write T2 equals to. Okay. इसको मैंने T2 नाम दिया है. Again, similar formula है. Let me just copy this formula here. I'll just copy this formula from the top. I'll paste it here and then I'll modify it. Okay. तो मैंने paste किया तो same formula है, थोड़ा सा difference है. तो वहां पे GM by CD था, यहाँ GCD by M है. Okay. तो यहाँ से देखो G तो मेरा D6 है, D6 में G है. अब मुझे वहां पे CD चाहिए. I need CD value. CD क्या है? D5 है. तो यहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ इस तरह से. इसको 5 कर देता हूँ और नीचे वाला 4 हो जाएगा. क्या डिफरेंस रहेगा? क्लियर है? I think it's clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so I get Yes, sir. 0.22147. I got T2, I got T1. Okay, this was the same value which we were getting. अब मुझे क्या करना है? T1 multiplied by 10 hyperbolic of T2. वही velocity है. T1 multiplied by 10 hyperbolic of T2. Okay, that's right here. T2 Into T of course. Into T of course. Okay. So the value of V will be T1. मैंने क्लिक किया T1 पे, that is H4 multiplied by 10 hyperbolic function है हमारे पास. टाइप करेंगे, we'll type 10. Okay, sir. 10 and then it gives you two options, either 10 or 10 hyperbolic. Let me choose the 10 hyperbolic. I chose the 10 hyperbolic value. Number 10 hyperbolic में number क्या चाहिए मुझे? I need this T2. So I click on T2. Then multiply by, I need time. अब D10. time क्या है? D10. ध्यान से देखना, D10 है. अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले ने ब्लॉक कर दिया है इसको. So I'll just manual type D10. Just type D10 और वहां पे वो पर्पल कलर का साइन जो है D10 पे आ गया है. Okay. I can close the bracket. And get the first value. First value क्या आ रही है? 0. It has to come क्योंकि टाइम क्या है? 0 है. अब थोड़ा और ध्यान से देखना इसको. जिन लोगों को एक्सेल आता है क्लियर है, जिनको नहीं आता थोड़ा सा और ध्यान से देखना. अब जो ये हाँ बताओ. Sir, हाँ बताओ. so since the value of T1 is 44.2945. Okay. So sir, instead of H4, can we write G4? नहीं, sir, वही मैं बता रहा हूँ. we'll G4 take नहीं the लिख सकते हैं. value of 44.2945. You are saying कि H4 की जगह पे G4 लिखें. हाँ सर. नहीं. सर क्योंकि T1 equals to 44.2945 है तो. मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना जिनको एक्सेल नहीं पता. ये जो T1 इक्वल टू लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है. ये सिर्फ हमारे देखने के लिए है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है. ध्यान देना. इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रिंग है. यू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग? दिस इज अ स्ट्रिंग. Yes, ये sir. यहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे ये T1 जो है वेरिएबल नहीं बनाया है मैंने. एक्सेल में वेरिएबल्स नहीं बनते हैं इस तरह से. ओके. एक्सेल में जो रहता है सिर्फ सेल रहता है. इट्स ओनली हैविंग सेल्स एंड द सेल वी हैव द डेटा. सो अगर मैं G4 लिखता हूँ, सो व्हाट यू आर गेसिंग हियर इज इफ आई टाइप G4 हियर इंस्टेड ऑफ H4, तो वहां पे ये मोस्ट प्रोबब्ली एरर देगा. ओके, लेट मी ट्राई शो यू. इट विल गिव यू सम एरर. सर
स्ट्रिंग को असाइन करनी Sir, है once more. वैल्यू तो क्या करेंगे? वन सेकंड, हाँ नेक्स्ट Understood, sir. हो गया वो T4 G4 H4 ना। Yes, sir. Understood. G4 is a string, H is a Yes, sir. numeric value, okay? अगर मैं इस Yes. न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर ये स्ट्रिंग ना होके स्ट्रिंग होता तो प्रॉब्लम होता। फॉर एग्जांपल लेट मी पुट अ स्ट्रिंग हियर, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जैसे मान लो यहाँ पे एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, जस्ट शो यू हियर। सो यहाँ पे देखो जनरल फॉर्मेट लिखा है ऊपर, ये दिखा है। इसको अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे टेक्स्ट में, मैंने क्या किया, ये क्या हो गया, अभी टेक्स्ट हो गया। ये क्या है, मेरा जनरल है, ये दिख रहा है। ये टेक्स्ट यहाँ पे देखो ऊपर, ये टेक्स्ट दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट दिख रहा है ऊपर। यस सर, यस ठीक है, सर, ये जनरल है। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर Yes, मैं sir. 44 लिखता हूँ मान लो, ठीक है, यहाँ पे 44 लिखता हूँ तो ये देखो हरा सा एक निशान आ रहा है, ट्रायंगल सा। It means Hmm. कि Yes, you sir. want Yes, to sir. convert to number, you want to convert it to number because this seems like a number. This number is stored as text. ठीक है, but यहाँ पे ये निशान नहीं आ रहा है। Okay, in that case this is treated as a text here. If you try to do some calculation, it may give the error. Okay, let me try show you this value. Okay, this is treating it as a text, is good. So they are evolving. ठीक है, so for the text it treats as a number, okay, but it may give some error sometimes. So ये जो पूरा text है ना, इसमें जनरल में ये text है। Anyway, so पहला वैल्यू आ गया। अब लिसन केयरफुली, ड्रैगिंग का जो मैंने फीचर बताया था, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ 1 के लिए, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई एम गेटिंग अ जीरो वैल्यू। व्हाई? जब मैं इसको ड्रैग किया t equal to 0 ही ले रहा होगा सर सर। टाइम 0 sir, because it is for H4, it is again taking the cells D below it. D10 ले रहा होगा सर वो सेल। H5, and for H5 it is taking a H6. परफेक्ट That's why. परफेक्ट। सो क्या हुआ एरर, ये टी को तो सही कर रहा है, देखो टी की जगह क्या ले रहा है, ये जो टाइम है मेरा, टाइम में तो D11 ले रहा है ना, टाइम में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से जब मैं ड्रैग किया तो जो फॉर्मूला यहाँ था वो था, देखो ध्यान से देखो, 4 5 10 था, H4 H5 और D10 था। अब ड्रैग करके देखते हैं इसको, तो ड्रैग किया तो क्या बन गया, वो 5 6 11 बन गया। इज इट क्लियर? उसने क्या किया, जैसे ही मैं नेक्स्ट रो में शिफ्ट हुआ, उसने रो को चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, 5 6 11 कर दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना क्योंकि बार बार यूज होगा इसका। 4 5 10 को 4 5 10 था यहाँ पे, जिसका लैग हो रहा है, ध्यान से देखना, सी केयरफुली, इट मेड इट 5 6 11 इंस्टेड ऑफ 4 5 10। नाउ आई डोंट वांट दैट। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी दिस, आई वांट these values to be fixed. Don't I want it? I want these values to be fixed. But प्रोग्राम ने क्या किया, उसने उन दो को नीचे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट रो में देखो, इसने और नीचे शिफ्ट कर दिया। Isn't it wrong? Yes. उसका सॉल्यूशन किसी को पता है? So we can directly put the values. One thing is that, another thing, any other solution जिसको एक्सेल पता हो? Have you heard of the system dollar? Dollar term सुना है? Yes, sir. Yes, sir. We So- can use dollar before it, so it will We be. can use dollar before something to fix that. We can use Yes, dollar sir. for fixing that. Okay. Now in this case, we want to fix the values of T1 and T2. Okay. H4 and H5. तो जहां जहां पे H4 और H5 है, I want to fix that. ठीक है. You can either fix column, you can either fix row, or you can fix both. Okay. In this time, I'm fixing both. Let's fix both the values. Okay. अगर मैं H के आगे डॉलर लगा देता हूं, तो मेरा कॉलम फिक्स हो गया। मैं 4 के आगे रो लगा देता हूं, तो मेरा रो फिक्स हो गया। फिर यहाँ पे फिर से मैंने कॉलम फिक्स कर दिया, H रहेगा, रो फिक्स कर दिया, $5। तो अब ये $H, $4, $H, $5 ये हमेशा फिक्स रहेंगे व्हेन यू ड्रैग दिस फॉर्मूला ईदर अलोंग द रोज और अलोंग द कॉलम, दोनों केस में फिक्स रहेगा। लेट मी शो यू दिस वैल्यू। सो अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ नेक्स्ट टाइम, तो मुझे कुछ वैल्यू मिला, क्योंकि इसने H4 H5 को फिक्स कर दिया, D फिक्स नहीं था। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So the beauty of this Excel is that you can fix along the row, along the column, or the fixed values. So you don't have to worry about putting the numerical values. You can do the computation quickly. ये कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करूं, so it will take to the next value, and then again if I double click, it will take to the last value. फिर से बताऊं,
यहाँ तक हो गया था। दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं ड्रैग करके लेके जाऊं नीचे, है ना, मैंने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ा एंड आई ड्रैग इट ऑल टू द बॉटम, इट इज गिविंग मी डिफरेंट वी वैल्यूज। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट यहाँ Yes, पे sir. किसी को? नो डाउट ना? ओके सर एक बार फिर से हाँ बता दो दोनों हाँ, वाला। यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला लिखा था, ये क्लियर है यहाँ तक? दिस फर्स्ट यस फॉर्मूला सर। इज क्लियर। सेकंड फॉर्मूला, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा कॉर्नर से, इस कॉर्नर से पकड़ के, बस ये कॉर्नर ध्यान रखना है, जो कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको नीचे लेके आ गया, सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉर्नर से पकड़ के नीचे लेके आ गया। अब हर एक जगह पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला वही है, देखो H4H5D12, H4H5D13, H4H5D14। इज इट क्लियर? यहाँ तक ठीक है? अभी कोई डाउट? एनी डाउट आस्क मी राइट अवे। सर फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कैसे कर रहे हैं, मतलब इंटर दबाने से हो जाता है क्या? ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगा तो वो वैल्यू ले लेगा उसकी। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू 2 + 3 एंड आई प्रेस एंटर, इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 5। इफ आई प्रेस द एंटर, ये यही क्वेश्चन था ना, इफ आई एम करेक्ट? सर वापस कैसे जाना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से फॉर्मूला पे? अच्छा, डबल क्लिक, आई एम डबल क्लिकिंग द फॉर्मूला। ओके सर, ओके सर। व्हेन यू डबल क्लिक यू कैन सी द फॉर्मूला। एनी अदर डाउट्स? सर ये अभी आपने बोला था ना कि जो T1 है वो स्ट्रिंग है, तो ये जो H की जो वैल्यूज हैं वो असाइन नहीं हुई है T1 को। यस, तो सर नहीं अगर हुई हम है। लोगों को T1 को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे? वो नहीं होता एक्सेल में। एक्सेल अच्छा। में वेरिएबल्स नहीं होते हैं, उसके लिए तुमको क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट होती है जिसमें तुम फंक्शन बना सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, VBA स्क्रिप्ट होती है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें तुम कर सकते हो। तो सर हमें जब भी वैल्यूज का यूज करना है तो रोज और कॉलम का यूज करना पड़ेगा? तुम्हें उस सेल का एड्रेस यूज करना पड़ेगा, जो कि है H4 यहाँ पे हाँ। है, जैसे H5 यहाँ पे है। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है, यहाँ पे T1 कोई नाम नहीं दिया जाएगा इसको, बट यहाँ पे H5 एक वेरिएबल है, यानी H5 बिकम्स अ वेरिएबल। जैसे हम फोर्ट्रैन में और सी में जो वेरिएबल लिखते थे कि i = 1, तो यहाँ पे i = लिखने से काम नहीं चलेगा, ये एक्सेल i को नहीं पहचानता है। एक्सेल जस्ट लिखेगा i, तुमने यहाँ i लिखो या j लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैटर करती है कि H2 में क्या है, 112 है, तो दैट इज स्टोर्ड इन H2। उसका एड्रेस है, उसका जो वेरिएबल है वो H2 रहेगा। इज इट क्लियर? एक्सेल ओके में यू सर। कैन नॉट स्टोर द वैल्यूज इन अ वेरिएबल। VBA स्क्रिप्ट में होता है, इसमें नहीं है, वो एडिशनल है। ओके सर। ओके, सो यहाँ तक ठीक है? सर हाँ सर H4 में आपने SQRT फंक्शन कैसे इंसर्ट करा था? हाँ, अगर मुझे SQRT लिखना है H4 में, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी मैं अगर लिख के दिखा दूं, so just press the equal key। जैसे मैं इक्वल की दबाऊंगा, I have number of formulas open to me, okay, I can type different formulas, okay, so let's say for example I want to calculate the standard deviation of this velocity, okay, मान लो sample standard deviation, ठीक है, so I'll type the STD। अब यहाँ बहुत सारे फॉर्मूला आ गए, नहीं है? I'll select the formula for the standard deviation. Calculate standard deviation based on the entire population. Calculate standard deviation based on a sample. So I'll take the sample standard deviation. जैसे ये फॉर्मूले पे मैंने सेलेक्ट किया, I'll just press the tab key. Tab key is very important. It works in MATLAB as well as in Excel or the Octave. Select किया, फॉर्मूला आ गया मेरे सामने. Then I have to give the range of values for which it wants to calculate the standard deviation. So I select these all rows. Select किया मैंने. Either I can select or I can give the range. That do it from E10 to E18. E10 colon E18, and then I press the bracket close. That is for the function में input होता है, output होता है, the input is E10 to E18, and then I press the enter key. It will calculate the standard deviation of the data. Okay sir. Clear? Any other doubts? Because if you learn this and when you're doing the programming, it will be very very beneficial for you. You can do it quickly. Okay. सर हाँ सर जैसे अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, अगर हम इसका दोबारा से एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, लाइक जैसे H5 है जिसकी हाँ। न्यूमेरिक वैल्यू 0.2214, तो उसको कैसे देखेंगे? देखो, एक तो जब मैंने यहाँ क्लिक किया, तो एक तो तुमको ऊपर ही दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस बार में, यहाँ पे फॉर्मूला, करेक्ट? जैसे ही मैंने उस पे माउस लेके गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक तो एड्रेस बार में मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, आई कैन सी इट इन द एड्रेस बार हियर टॉप, है ना, वैल्यू फॉर्मूला बार, सॉरी नॉट एड्रेस बार, फॉर्मूला बार में आई कैन सी द फॉर्मूला. Still you can double click on it and see the actual formula. You can see the colors corresponding to different cells. You can see that D6 going for the blue cell, that is D6, D5 going to the red cell, that is D5, D4 going to the purple cell, that is D4. Clear?
Yes, sir. Okay. Okay. So any other doubts? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? फॉर्मूले में जो D6 और D5 पुट करने के लिए क्या हाँ, करना पड़ा फॉर्मूले था में मैं फिर से बताता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मूले में कोई वैल्यू पुट करनी है, मान लो स्क्वायर रूट, है ना? I'll take the square root again. I want to put the value D6. So I can type D6. I can type D6. तो D6 बन जाएगा वो. I can type D6. That is one way. I know the address. जैसे मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप करता हूँ E11. तो E11 टाइप कर दूंगा. So it becomes E11. ले गया वहाँ पे. That is the first way. Second way could be I can take my mouse and click on that cell. मान लो ये cell है. I can click on that cell. It will give me H10. I can click on मान लो D11. It will take D11. Okay. Once I have that value, I close the bracket. As the enter, I'll get the required value. Clear है ये? Yes, फॉर्मूले sir. में Thank you, sir. D5 D6 कैसा आया? Any other doubts? Yes. Feel free to ask any doubts. No doubts still here? Okay. So let me go ahead and take some more time values here. Okay. So I'll just extend this value. So मैं ये पूरा सेट है, इसमें से मैं लास्ट की 2-3 वैल्यू या 2 वैल्यू सेलेक्ट करके I can drag it and it will take the similar pattern. Okay. Let me take 7, 8, 9. At least 3 तो लो. So let me take up to 15. Okay. And इसमें काम करते हैं. Time value, it's not necessary कि मुझे 1 का इंटरवल लेना है. Okay. I can change the time value. Let me take 10. Let me take 20. Let me take 40. It's automatically taking, है ना? 60. Let me take 80. And you can see it is converging. It is converged. Clear? ये converge हो गया? Okay. इसको हटा देता हूँ मैं. यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को. सो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं. ओके. प्लॉटिंग करने के लिए बहुत आसान है. प्लॉटिंग इज वेरी इजी. यू सेलेक्ट द टाइम एंड द वेलोसिटी. Select the time and the velocity. Time becomes your x axis, v becomes your y axis. I select these two and then select the entire जो पूरा एरे है मेरा, टाइम एंड वेलोसिटी का एरे मैंने सेलेक्ट किया. ध्यान से देखो, I selected time, velocity, all the time velocities. Excuse me, sir. हाँ हाँ. I think, sir, screen gets freezes. It's frozen? Sure. Yes, yes, sir. Yes, sir. No, Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा No, lag sir, कर it's रही है not. sir. No, sir. No, sir. Lacking Okay. because of the I think network. it may be lagging, but it's not frozen, I guess. Okay. I'll take it slowly, so it will come back to you in a second. Take some time. अभी तक क्या स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको? You have the time values, you have the velocity values. Time goes from 0, 1, 2, 3, 7 up to 200. यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. Okay, I'll share it. No, sir. 0 to 8 दिख रहा है, sir. Sir, दिख रहा है. Time 0 200 से 8 तक है. दिख रहा है. दिख रहा है, दिख रहा है. सर दिख रहा है, दिख Zero रहा to है. पूरा 8 दिख रहा है. दिख रहा है, sir. 200 दिख रहा है. Yes, sir. Okay, maybe network Zero problem to हो रही होगी 8 तुम्हारे दिख रहा साइड में. मैं फिर शेयर कर रहा हूँ. Wait a second. Let me share it again. I'll stop sharing and maybe some lag there. हाँ, अभी Now visible, sir. Yes, sir. Now it is visible. ठीक. Yes, sir. Okay, so now we have this array here. So ये जहाँ पे भी जो value put करूँगा मैं, it will take that value. 150 if I put, it will take the corresponding value. Okay, it has converged. Plotting देखो एक बार, very important again. I select the data which I want to plot. I select the data which I want to plot. I want to plot time versus velocity. I go to insert. यहाँ पे top पे देखो, insert का है ना function है ना, insert tab दिया है, sorry, not function. It's a tab, insert. I go to charts here in this section. Charts है मेरे पास. Okay, I can choose whichever chart I want. Okay, but right now I just want to see how the velocity is varying with time. So I select the scatter kind of plot here like this. It's a simple scatter plot कर सकता हूँ मैं, या मैं with line plot कर सकता हूँ. ना, so this is better. ना, इसमें नहीं जाते हैं ना, इसमें जाते हैं point के साथ. Okay, let's plot this one. You can explore different plots if you want, but मैंने यहाँ पे एक simple plot बनाने की कोशिश करते हैं. ये यहाँ पे ये चार्ट बन गया. ठीक है. So you can see this chart here. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं बहुत दूर चला गया, यानी कि 200 चला गया. लेट्स delete some data here. ये चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं, so that I move forward. No, sir. No, sir. Okay. So I'll delete some data here. 200, 150, and I think 80. They are far away. I'll just delete these rows here. So the chart will keep on shrinking as I delete the values. So let me delete the 80 also. Let me delete 60 also. 60 तक भी
think it's converging है ना, यहाँ से थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये. I can see it looks better. These set of values are fine. So you can see it converged to nearly 44.2945. Okay, I can try one more value. Let's take the 60. क्या इसने ये वैल्यू लिया 60 का? नहीं लिया. यहाँ तक देखो, इस चार्ट पे मैंने जब क्लिक किया, अगेन मैं स्लो जा रहा हूँ, चार्ट पे जब मैंने क्लिक किया, सो इट जस्ट शोइंग वैल्यूज अप टू 11th सीरियल नंबर. यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ड्रैग इट, आई कैन from the corner I can drag it. It will take the value of 60 also. Clear? No doubts? Okay. Please sir, please हाँ. tell once again this. कौन सा जो मैंने ऐड किया डेटा? Yes sir, the chart में जो आपने चेंज किया था अभी चेंज किया ना. Okay. Let me press the Control Z. Control Z. Control Z. अभी ये सिचुएशन था, है ना. यहाँ पे देखो 60 वाला पॉइंट यहाँ शो नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे. Is it showing? नहीं ना? No sir. No sir. So I'll do is क्योंकि मैं जो चार्ट पे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि क्या प्लॉटेड है. It is plotting time versus velocity for this up to 40 only, क्योंकि कलर देखो 40 तक ही है. It's only up to 40. So ये क्या करता हूँ, कॉर्नर जो पॉइंट है ना, कॉर्नर वाला जो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा. पहला चीज है ना, इसको ड्रैग किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह से पर्पल वाले को मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक. जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया. इट बिकम्स अप टू 60. एक तरीका ये है, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है ना. सिंपल है. Yes sir. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. अब लेट्स टेक द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आल्सो, है ना. सो लेट मी राइट हियर, इसको मैं साइड में रखता हूँ चार्ट को. लेट्स टाइप द VN, आई एम कॉलिंग इट VN. ठीक है, VN न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. तो जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमें करना है, सो वी नो दैट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है उसका जो फॉर्मूला था, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन सो दैट it will be easier, which we derived. Let me put the solution here. चार्ट को साइड ले जाते हैं. ये था फॉर्मूला. Yes sir. Yes sir. This was the formula. इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमको V at ti plus 1 will be V at ti previous time step plus in the bracket we have G minus CD by M V at ti square multiplied by ti plus 1 minus ti. Okay, let's use that. Let's use that. तो एक बार बताओ, पहले तो मुझे इनिशियल वैल्यू देना होगा. आई हैव टू गिव द इनिशियल वैल्यू फॉर एनी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. आई विल गिव 0 इक्वल्स टू 0. ये मैं दे देता हूं उसको. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को. नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे यानी कि सीरियल नंबर 2 पे यानी t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे आई वांट द वेलोसिटी यूजिंग द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0. सो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना. आई एम टाइपिंग. आई स्टार्ट विद इक्वल साइन. पहला वैल्यू क्या है, इक्वल के बाद VTI. VTI मींस प्रीवियस टाइम पे क्या वैल्यू है. तो प्रीवियस टाइम पे वैल्यू क्या है मेरी, 0 है, पर मैं 0 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना. आई विल नॉट टाइप 0. आई वांट टू टाइप व्हाट शुड आई टाइप, the cell F10. address. I should type F10. Should I apply dollar here? That is question. क्या dollar required है यहाँ पे? No sir, not required. Not required because it will be changing. It is a dynamic value. Okay, so I'll not apply dollar here. Okay, plus. After that I press plus. Then I have a big bracket, square bracket. So it doesn't matter. Square नहीं लगाना है. Bracket हमेशा small रहेंगे सारे जितने भी हैं. Square bracket नहीं होता है इसके अंदर. So I'll press the simple bracket. Then I have to use the G. Okay, G के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, जो कि D6 में है. I can click on G. G means D6 पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो D6 आ जाएगा. क्लियर है. I get the value of G. Now I press the minus key, minus sign. D6 that is G minus. अभी CD by M है ना, CD by M है. Okay, so let me use the CD by M. हाँ बताओ. Sir, in So we have to use dollar here. Yes, we have to use. Definitely. Okay, so let me type the formula and then we'll decide किस में डॉलर यूज करना है. ठीक है, let's first type the entire formula. So इसके बाद मुझे क्या करना है, CD by M करना है. So एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, है ना. CD by M को ब्रैकेट में रख लेते हैं. So CD क्या है मेरा, D5 okay, divided by M that is D4. Oh, I think मिस हो गया. D5 divided by D4. यहाँ तक हो गया CD by M. So D5 by D4 is my CD by M. Okay, it has to be multiplied by what, VTI square. Okay, so I'll do is I'll multiply it by this value. What I can do is I can use the symbol for the power, the exponential power, multiply by that is power 2.
ये मैं कर सकता हूं, या मल्टीप्लाइड बाय f10 इंटू f10 भी कर सकता हूं मैं, वट एवर आई वॉन्ट। अभी मैं पावर ले रहा हूं उसमें ना। सो लेट्स क्लोज द ब्रैकेट and multiplied by, what I need is, I need ti plus 1 minus ti. Ti plus 1 is the current time. What is that? That is D11 d11 minus d10. D10 अब इस फॉर्मूले में अब जरा सोचो क्या क्या चीजें मुझे कांस्टेंट रखनी है, उनको हम लोग फिक्स कर लेंगे। ओके, रो फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करना है, जो भी फिक्स करना है यहीं पे करना है। तो f10 पहली वैल्यू, इट हैज नॉट टू बी फिक्स्ड, f10 will not be fixed. d6, d5 and d4, all these three are constants. I must fix them. Okay, I must fix them. Ab, if you want, you can just fix the rows and it will work. You don't have to fix the column because we will not be moving along the columns. We are moving along the row. Yes, So sir. you have the freedom. You just fix the rows. तो D6 में मैंने 6 नंबर रो को फिक्स कर लिया, 5 नंबर रो को फिक्स कर लिया एंड 4 नंबर रो को फिक्स कर लिया। I don't want to fix D. You want, you can do it. If you don't want, you can leave it. It will not going to change anything because हम जो मूव कर रहे हैं हम रो में मूव करेंगे, सीरियल नंबर से मूव करेंगे। जब हम सीरियल नंबर मूव कर रहे हैं तो रो मूव कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग टू द कॉलम। सो ये डॉलर हम लोग डी में लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हम लोग लगाना जरूरी है। F10, do I need to fix it? No. No sir. D11, Yes, sir. D10, don't need to fix it. It is dynamic, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो हो जाएगा D12 minus D11, then it will be D13 minus D12. Fixed it? या इस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? यहाँ से मैंने कॉपी करके बस इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देख लो इसको। अभी क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। लेट्स प्रेस द एंटर एंड सी व्हाट इज। हाँ बताओ। Sir, like if we write dollar D4, so sir, it will fix only D or also Only D4? D, only not 4, only D. Okay, sir. Okay, so if I want to fix both of these, then I have to put dollar before 4 as well as before D, यानी रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना होगा। अगर सिर्फ लिख दिया मैंने डॉलर D4, it will be fixing only D, not 4. Okay. Okay, sir. Understood. So अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँ, let's see what is the value that I get. Okay, and I get 9.81. Decent है। Actual value थी 9.65, the real value 9.81. I want to see more decimal places. Okay, यहाँ पे एक्सेल में एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे 4 देखने के लिए, मैं यहाँ पे 4 देखने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास में डिक्रीज डेसिमल इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है टॉप में। यू कैन सी जस्ट बिलो द जनरल वी हैव इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो लेट्स इंक्रीज द डेसिमल टू 4 places, all that 0 but let's keep it for the 4 decimal places. अभी अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो it should give me the all the numerical values, correct? Let's drag it 1 2 3 4 6. Let's see. Oh, I got all the values. Okay, so I'm getting a negative value at the end of this value. ये नेगेटिव क्यों आ रही है, कोई बता सकता है? Why am I getting a negative value? सर ये टी स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है ना टाइम के साथ, हम्म, मतलब टी स्क्वायर बढ़ रहा है ना। VTI स्क्वायर। हाँ, तो वो सर जी से जब बड़ा हो जाएगा तो सर नेगेटिव हो जाएगी वाली वैल्यू। VTI स्क्वायर बढ़ रहा है सर क्योंकि सर हम I+1 जानते हैं। और सोचो जरा, बहुत सिंपल आंसर है इसका, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या मिस्टेक हो रही है, कोई बता सकता है? इज इट अ मिस्टेक और द न्यूमेरिकल मेथड की प्रॉब्लम है, या क्या बोल सकते हैं इसको, ब्लंडर है, क्या है ये, कोई बता सकता है? 40 और 60। हाँ बताओ सर 40 और 60 के लिए सेम वैल्यू है भी की। ठीक है, उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नेगेटिव क्यों दे रहा है? एक बार इसको देखना ध्यान से, ठीक है? सर मिस्टेक क्या है इसमें, डायरेक्शन चेंज हो गया होगा मे बी। सर डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है सर, मेरे में तो सही दे रहा है। तुम्हारा सही दे रहा है? यस सर 41.34 दे रहा है। इसमें 41.34 दे रहा है? यस सर 60 में यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है। लेट्स टेक सम मोर वैल्यूज। ओके, लेट्स टेक सम मोर वैल्यूज। ओके, लेट्स टेक some more values and see what happens. Okay, oh ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, फिर बताओ कोई।
ये इतना बड़ा नेगेटिव वैल्यू क्यों आया? तो यहाँ पे देखो 9.8 था, 9.65 था, 19.13, 18.43, 25, 27, 31, 33, 35, 37, यहाँ तक सब ठीक था। 38, 40 में भी ठीक था। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। 40 से 41, 43 से 44। इसके बाद देखो गलती हुई, देखो यहाँ पे ये गलती देख रहे हो, यहाँ पे 10 to 20 में गलती हुई गलती। यस सर, इस साइड 44 आ रहा है, इस साइड 41 आ रहा है। ये डाउन हो गया ना? यस सर। क्यों हुआ? कोई जी आंसर सर। है इसका? सर रेगुलर इंटरवल नहीं था शायद। सर रेगुलर इंटरवल नहीं है तो सर हमने जस्ट एक्सटेंड किया है। नहीं, रेगुलर तो रेगुलर का मतलब तुम बोल रहे हो इक्वल इंटरवल नहीं है, ये कह रहे हो? यस सर। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको मान लो 3 कर दूं तो भी वो उतना एरर नहीं दे रहा। देखो 25, 28, इसको मैं 7 कर दूं, 40, 51, यहाँ पे मैं इसको 12 कर दूं, प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? इसमें रेगुलर इरेगुलर की बात नहीं है। इसमें जो बात आती है, एक चीज होती है स्टेबिलिटी। जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं दे हैव टू बी स्टेबल, ठीक है? बिकॉज द एजम्पशन दैट वी आर मेकिंग कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, वी आर नेग्लेक्टिंग हियर दैट। याद आया? हमने जब बताया था कि dv by dt is approximately equals to vi plus 1 over ti plus 1 minus ti, कहा था हमने फॉर्मूला। वहां पे Yes, sir. assumption ये था कि dt has to be very small, and when we neglect that assumption we go for unstable solution। और unstable solution कैसा होता है? अप डाउन मूव करता है, मतलब वो पहले पॉजिटिव नेगेटिव या कहीं भी रैंडम वो जा सकता है। इट में बी डाइवर्जिंग, इट में बी ऑसिलेटिंग डाइवर्जिंग, है ना? सो यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स में वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट टाइम स्टेप वी पिक अप, व्हाट टाइम स्टेप वी पिक अप। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइम स्टेप लिया था 3 का, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 1 to 3 था तो ठीक था। 3 to 12 कर दूंगा तो ये पूरा 80 पे जंप कर गया। 12 to 20 कर दूंगा तो -99 पे जंप कर दिया। 30 कर दिया तो बढ़ रहा है, बट वो रॉन्ग वैल्यू दे रहा है। इट इज गिविंग मी irregular values because of the unstability। so हर numerical solution का एक stable range होता है। okay, so for this particular solution we have to keep the interval only up to 2 to 3 seconds, otherwise वो error देगा। so let's try that for the interval of 2 4 like that। let's try that only up to, अब तो इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, अब तो इसने परफेक्ट सॉल्यूशन दिया, यहां तक तो इसने परफेक्ट दिया। लेट्स डू वन थिंग, इसी प्लॉट पे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी प्लॉट कर देता हूं। ओके, आई विल टेक 5 more minutes। लेट्स सेलेक्ट द डेटा। ओके, यहां पे ध्यान से देखना, आई एम ऑन दिस चार्ट, आई राइट क्लिक, आई सेलेक्ट डेटा, आई वांट टू ऐड अ डेटा हियर। ओके, आई वांट टू ऐड अ डेटा, तो यहां पे मैंने ऐड किया। आई विल गिव अ नेम। ओके, आई विल गिव अ नेम न्यूमेरिकल, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है? यहाँ पे जो एरो है, इस दिस एरो पे मैं क्लिक करूंगा, आई क्लिक ऑन दिस एरो एंड सेलेक्ट द टाइम वैल्यू। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गई वापस, लेट मी स्ट्रेट अगेन। अभी विजिबल है? यस सर। ओके, फिर से देखो, ये चार्ट है, आई हैव दिस चार्ट, आई राइट क्लिक ऑन द चार्ट, आई राइट क्लिक ऑन द चार्ट, रिमेंबर सेलेक्ट डेटा, आई वांट टू सेलेक्ट मोर डेटा। दिस सीरीज ऑलरेडी एडेड है ना, ये वी नाम से सीरीज एडेड है। आई विल क्लिक ऑन ऐड, ऐड सीरीज का नाम आई कैन गिव एनी नेम आई वांट, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आई विल गिव द नेम। On the x-axis I want these times, on the y-axis I click on this arrow, I want these values, enter and okay, ये बन गया चार्ट। बन गया चार्ट, तो ये तो काफी सही है। इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा इंटरवल और कम करता हूँ, मान लो 1 2, और बेटर हो गया, it's getting better। let's take the interval of 3 seconds to see what happened। ये ऑसिलेट किया इसने, देखो पहले शूट किया ऊपर, फिर शूट किया नीचे, फिर अल्टीमेटली जाके वो कन्वर्ज हो गया 3 सेकंड के लिए। लेट्स टेक अ वैल्यू ऑफ 4 सेकंड्स। देखो, यू सी इट, ये विजिबल है किसी को?
Yes, sir. How Visible. it's oscillating up and down. This is called instability. Let's take a value of 5 seconds. Diverging, isn't it? Diverging, oscillate किया and diverge. 4 सेकंड तक it was converging. So इसके लिए जो फॉर्मूला है वो 4 सेकंड तक जो है वो कन्वर्ज कर रहा है. Okay. So for the 4 second it will converge, but ये भी solution जो है वो unstable बोलते हैं इसको, है ना. So that's one thing. Okay. ठीक है. हाँ. शॉर्ट बोल सकते हैं कि इंटरवल का जो कोई भी डाटा सेट का इंटरवल जितना छोटा होगा डाटा उतना मतलब एक्यूरेट होगा. परफेक्ट, यही तो आंसर है. तो जितना छोटा, ये हम पढ़ेंगे अभी, एरर जब हम करेंगे, we'll discuss in the next lecture. We'll discuss about the error. सर तो जब सर लास्ट डेविएशन होता है तो ऐसा डेविएशन सर क्यों मिलता है आंसर में? मैंने बताया ना, जो dv/dt का जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? dv/dt स्लोप है. अभी मैं अगर तुमको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो इस फिगर को देखना, मान लो एक फंक्शन है मेरे पास, है ना, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशंस है मान लो, ठीक है, या ऐसे कहूं, जैसे मान लो dv/dt है vi+1 - vi over ti+1 - ti. जब हम इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं स्लोप का, अगर हमने पास वैल्यूज ली है v की, है ना, जो कि नजदीक है, तो मुझे एक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. बट अगर वैल्यू मेरी दूर हो गई, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गई उस कर्व में, तो क्या वो मुझे एक्यूरेट वैल्यू देगा स्लोप की? नहीं ना. जो स्लोप है मेरा dv/dt, अगर मैंने एक वैल्यू v का यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, मैं इससे क्या बताता हूँ, जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा. ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट देख रहे हो जहां मार्क किया मैंने. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप हियर, ओके, तो दो चीजें हैं देखना जरा. यहाँ पे स्लोप मैं निकाल सकता हूँ ये वाला पॉइंट लेके और एक ये वाला पॉइंट लेके, लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट. तो स्लोप कैसा आएगा? फ्लैट टाइप का आएगा. एक इनिशियल पॉइंट यहाँ लिया मैंने और एक पॉइंट यहाँ लिया, फ्लैट टाइप का आएगा. यही चीज अगर मैं ये वाला पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट लेता हूं तो क्या आएगा? स्लोप बहुत स्टीप आएगा, बहुत हाई आएगा. यस सर. पहली चीज है ना. इसमें और देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लूंगा तो स्लोप अलग आएगा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से स्लोप अलग आएगा. आया नहीं आया? यस सर. एक्चुअल स्लोप से तो एक्चुअल स्लोप तो नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे. आई एम नॉट गेटिंग द एक्चुअल स्लोप हियर. आई एम गेटिंग डिफरेंट स्लोप डिपेंडिंग ऑन what interval I am taking. But if I take a small interval, अगर मैं और zoom in करूं इसमें, and if I take a very small interval, let's zoom in a bit, और छोटा सा इंटरवल में अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं या थोड़ा पीछे जाऊं, ठीक है, इंटरवल छोटा है, तो मुझे एक्चुअल स्लोप के बराबर देगा वैल्यू. यस सर. That is the stability. That is the stability. If you go far away from point, अगर तुम्हारा इंटरवल बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो डाइवर्ज करता है. ओके. We'll discuss in detail when we'll do the error analysis, है ना, उसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे. So यहाँ तक I hope clear है. MATLAB में चाहता था शुरू करना, but maybe we'll start from the next class with errors and that. I think lab class में already you might be having hands on the MATLAB or the Octave, the Excel. Okay. If you have any doubts again, let me know. Otherwise, we'll meet for the next class. Okay, that will be on a Friday. We have off, so we'll again meet on Monday in that case. Okay. Sir, can you please postpone the class of Monday on any Saturday or Sunday, sir, because we will be traveling Okay. that time. Okay, so we can schedule it. Okay, I'll let you know about the. Okay. Okay, so we'll meet accordingly. Okay. So with that, I'll end the class here. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.